table tag. Okay, table tag that is used for creating tables. Tables means a grid of rows and columns. A grid of rows and columns. Whenever we want to display some information in tabular form on a web page, okay, maybe some information about the different packages, maybe some information about the price of different items. So whenever we want to display some information in the form of tabular form, in the form of rows and columns, we need to create the table. For creating table, you will need first of all table tag. That will be the beginning. कि yes, यहाँ से हमारा table. After that, you need to define each row and each cell. कि what where the row is getting started. Then एक row में कितना data, कितने cells और कितनी values है. We have to define each and everything by writing, by using the different tags. ठीक है. First of all, table tag में first we need the row. First row में क्या आएगा? यहाँ से table tag मैंने start किया, यहाँ से मेरा table start है. अब table के अंदर मेरी यहाँ से first row start है. For that purpose, we will have tr tag to define rows in a table. To define rows in a table. Table tag to define table or to create table in a web page. You can write the meaning. To create table in web page. Tr tag to define rows in a table. After that, you need data in a cell. First row अगर create start कर दी है, first row में मेरा first cell में क्या value आई? So that is defined by td tag. To define data of cells in a table. To define data of cells in a table. Full form of tr tag is table row. Full form of table tag tr tag is table row. Full form पूछी जा सकती है आपसे. Similarly, full form of td tag is table data. Table data. Are you writing in your rough copies? Yes. Okay. Then after that, we need one more tag. That is th tag. Th tag. Th tag is used. Th tag is used to define the header row. First row. जैसे first row headings है, तो headings के लिए अगर हम अलग से define करना चाहें, तो we can use th tag. td से भी हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है. td से हमारा first row define हो जाएगी. But th tag से जब हम row define करते हैं या data define करते हैं, तो that is automatically get bold for heading के लिए. So we can use th tag to define the header row. ठीक है? To define header row. Full form is table head, not header. Table head. th की full form है table head. ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? Now write, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था वेब पेज का, HTML, head, title. Now we are having multiple tags for table, so there will be a structure. कौन सा tag किसके अंदर कैसे यूज होगा? तो structure of table. Structure of table. First of all, there will be table tag to start with the table. Inside the table tag, we will have tr tag to define first row. Then we will have the table data. Table data, whatever information you want to type, you will write here and close. All these tags are container tags.
Table row, table data, table header or table, all are container tags. First cell define हो गया, ठीक है. Then we will have the second cell, ed, second information जैसे roll number, name या price. टेबल डाटा क्लोज. कितने कॉलम्स बन गए यहाँ पे देखो, दो डाटा डिफाइन किए, दो सेल डिफाइन किए, कॉलम कितने हो गए, 2. अगर मैंने 3 कॉलम बनाने हैं, वी आर हैविंग 3 वैल्यूज, so we can define like this. जितने कॉलम, जितने सेल्स आपको फर्स्ट रो में चाहिए आपने डिफाइन कर दिए, ठीक है. नाउ माय फर्स्ट रो इज फिनिश्ड, so I will close the tr tag. Yes, Laksh. 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एग्जांपल दी है कि अगर आपका 3 सेल्स हैं फर्स्ट रो में, तो ईच सेल इज डिफाइंड विद द टेबल डाटा टाइप, ठीक है. अभी एग्जांपल करके बताती हूँ, पहले इतना समझिए स्ट्रक्चर है, ठीक है. अगर फर्स्ट रो में 3 डाटा है, 3 सेल्स है, तो ऑब्वियसली बाकी की जितनी रोज आएंगी सब में 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है. तो फर्स्ट रो फिनिश हो गई है कि यस, अब इसके बाद जो मैं डाटा दूंगी वो फर्स्ट रो में नहीं आना, वो सेकंड रो में आना. So first row we will close by closing the tr tag. Now we will start the second row. Again we will start with tr tag. नहीं, मैंने सिर्फ टैग करके दिया तो लेवल डिफाइन करने के लिए. अगर आप टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा टैग देके अगर ऐसे टाइप करोगे तो आपको क्लोजिंग टैग tr के इजीली मिल जाएंगे, मिस्टेक नहीं होगी. अदरवाइज आप टाइप जैसे भी कर सकते हो, पैराग्राफ बना के करो, डजंट मैटर, बट इसमें आपको एरर्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है कि टैग ओपन कहाँ से हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे इजीली आपको नजर आ रहा है कि टैग की ओपनिंग कहाँ है और क्लोजिंग कहाँ है. अगर कोई टैग बीच में मिस हो जाए क्लोज करते वक्त तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो यस्टरडे जिन बच्चों ने कोडिंग सेंड करी थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की मिस्टेक ये थी कि आपका जो स्पेस दे रहे थे ब्रैकेट्स के साथ, ब्रैकेट्स के इनसाइड ओपनिंग या क्लोजिंग में स्पेस नहीं आनी है, ठीक है. आपका चला नहीं था समृद्धि, आपने कोडिंग भेजी, आज सुबह भेजी है शायद, आपने कल भेजी है, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ. ओके, नाउ tr टैग हो गया, सेकंड रो स्टार्ट हो गई. अगेन आई एम गोइंग टू गिव सेकंड, नहीं नहीं देनी होती. अगेन वी विल डिफाइन फ्री डाटा, फ्री सेल्स. ये स्मॉल या कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है. क्लोज द tr tag and in this way we can continue with as many rows as we want. ये 2 rows डिफाइन हुई है अभी, 2 rows 3 columns, ठीक है. We can continue with as many rows and columns as we want, similar pattern के साथ. And when we finish we will close the table tag, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? लास्ट बेंचेस बॉयज, बेटा ये tr we are starting the row, then we are closing the first row by using the closing tag slash value here. After that I am starting the second row tr tag, ठीक है. Then we are having freeze values for the second row, then I am closing the tr tag for second row. Now if we need the third row, again I will start with the tr tag and then we will give the table data. Clear है? Yes Laksh. Because first row में अगर 3 cells है तो नीचे के रो में भी तो 3 ही सेल होंगे ना. टेबल बना रहे हो, ड्रॉ करके देखो टेबल. नहीं बेटा, कहीं स्पेस नहीं देनी है, ठीक है. ओके, अब एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है. वैल्यूज डाल लेते हैं. फर्स्ट HTML, यू कैन डू द वर्क साइड बाय साइड, आप क्रिएट कर सकते हो. साथ साथ क्विकली टाइप करो जो मैं टाइप कर रही हूँ. HTML हेड, टाइटल, यूजिंग टेबल टैग.
cycle close, head close, and close body tag. Sorry, start body tag. अभी सिंपल कर रहे हैं, कोई एट्रीब्यूट्स यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर हैविंग मेनी एट्रीब्यूट्स टू डिस्कस आफ्टर दिस. हाँ जी, बॉडी टैग तक सबका हो गया? ओके, डू इट. आई विल वेट. हाँ जी, जलल, श्रेया, अक्षित, इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, निकुल, मनराज, यहाँ सामने आ जाए. सामने किसी के साथ आके ज्वाइन करिए. हार्दिक उसको रखता है. यहाँ ज्वाइन कर लो सेकंड बेंच पे बेटा. ज्वाइन करवा स्टूल ले आओ. हाँ जी, सामने सबको नजर आ रहा है? लास्ट बेंच इज विजिबल है? Then do the typing. Okay. HTML head title using the table tag. And start with the body. Body के अंदर हमने सीधा टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं. हाँ जी, यहाँ देखो टेबल टैग स्टार्ट किया. फर्स्ट रो टेबल डॉट tr. फर्स्ट रो में मैंने 3 सेल्स पर डिफाइन कर दिए. टेबल डाटा, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस. देन आई क्लोज द फर्स्ट रो. ठीक है, फर्स्ट रो क्लोज कर दिए. हिमालय, बेटा अगर आर्ग्यूमेंट ज्यादा करोगे, फाइटिंग करोगे तो किसी का भी नहीं काम होगा. हाँ जी, now I am defining the second row. Second row में I want serial number as 1. I want product name as colors. I want price as 100. हाँ जी, use the title and use the head. Head tag close करो, body tag start करो. आपका मार्क्स है. सीधा tr से स्टार्ट करो तो ऊपर वाले हेड टाइटल टैग का HTML हेड टाइटल लगता है.
प्रोडक्ट में मैंने कलर्स लिए। हाँ जी, नाउ सेव इट एवरीवन, जिनका टाइप हो गया, एवरीवन लुक हियर, नाउ सेव इट, क्लिक ऑन सेव एज, गिव द नेम constable.html। ये मिस किया कल 2-3 बच्चों ने। फर्स्ट फाइल का नेम, देन .html। पूछो। Now click on save button। I am going to the desktop, मैंने सेव करी है डेस्कटॉप पे। I am going to double click on the file to open it। Yes। क्या? ओपन करके देख लिया, रन हो रही है? Yes ma'am। Very good। हाँ जी, बिल्कुल करना है। हाँ जी, ये देखो टेबल बन रहा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, 1, कलर 100। एक प्रॉब्लम है, आपको ग्रिड्स तो नजर ही नहीं आ रही, लाइन वाली ग्रिड आ रही है, टेबल की जो हम लगाते हैं लाइन नहीं आ रही है, राइट? फॉर दैट पर्पस वी विल यूज द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। For that purpose, we will use attribute of table tag। कौन सा डॉक्यूमेंट में? हाँ जी, हैंड रेज करो, किस किसका हो गया? ओके ओके। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? हाँ जी, मेक सम चेंजेस, जैसे अभी मैंने किया, बॉर्डर कलर। ओके, यहाँ देखो, बता रही हूँ दोबारा, बॉर्डर कलर, ठीक है? देन सेव इट बाय प्रेसिंग Ctrl+S। नाउ प्रेस Alt+Tab, टैब की स्टार्टिंग में कैप्स लॉक के ऊपर Alt+Tab, ठीक है? ब्राउजर विंडो आ गई। ओके, नाउ प्रेस F5 टू रिफ्रेश। हो गया एंड ओके गुड। आपका क्या आया? कलर आ गया, पीछे कलर अप्लाई हो रहा है, दैट मींस बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा। चेक करो बॉर्डर के स्पेलिंग। अगेन Alt+Tab to go to the notepad। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी। Alt+Tab to switch between the application। F5 to refresh। आ गया? ओके, क्लियर? ओके, हाँ जी, 3 एट्रीब्यूट्स क्लियर? बॉर्डर कलर, बीजी कलर। ओके, नाउ वन मोर, अलाइन equals to center, left, center, right, align equals to center, that will place your
Alt plus tab to switch and press F5 to refresh. And वापस नोटपैड में आना है. Again Alt plus tab. Alt plus tab कीबोर्ड पे. ठीक है. Align equals to center. Center के spelling check करो. CENTER. हाँ जी. हाँ जी. You can note down. You can note down. बीजी बॉर्डर तो हो गया. अगर मैं टीआर के साथ बीजी कलर दूं इक्वल्स टू सपोज येलो. अभी मैंने किसके साथ बीजी कलर दिया? टीआर. ओके मेरा लगा हुआ. ओके चलो बेटा.